بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں کیلیفورنیا امریکہ سے آپ کا میزبان مخصوص ساجد، اس وقت کی چند اہم خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، مبینہ طور پر خبر ہے کہ اے ایس پی سیدہ شہر بانو نقوی کی آرمی چیف صاحب سید عاصم منیر سے جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں ملاقات ہوئی ہے۔ آرمی چیف صاحب نے اے ایس پی کی ڈیوٹی کے دوران بے لوث لگن اور ایک غیر یقینی صورتحال پر قابو پانے میں پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ پیش کرنے پر تعریف کی ہے۔ اے ایس پی صاحبہ نے 26 فروری 2024 کو لاہور کے اشرا بازار کے ایک مشتعل ہجوم سے ایک خاتون اور اس کے خامند کو بحفاظت نکالا تھا۔ آرمی چیف صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستانی خواتین زندگی کے تمام شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آزادی کے بعد سے پاکستانی خواتین نے اپنی قابلیت، استقامت اور عزم کی وجہ سے اندرون اور بیرون ملک خود کو ممتاز مقام دلا رکھا ہے۔ آرمی چیف صاحب نے مزید کہا ہے کہ بدعت کی بنیاد پر من مانی کارروائیاں معاشرے کے نقطہ نظر کو کمزور کرتی ہیں۔ آرمی چیف صاحب نے اسلام کے حسن سلوک اور احسان کے ابدی پیغام پر بھی روشنی ڈالی۔ آرمی چیف صاحب نے پاکستان کے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو بھی سراہا اور ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ناظرین، 2 جنوری 2024 کو سینئر قانون دان چودھری اعتزاز احسن کی جبری گمشدگیوں اور غیر قانونی گرفتاریوں کے کیس کی سماعت تھی۔ چودھری اعتزاز احسن نے اپنی آئینی درخواست میں گزشتہ 2 سالوں میں زیر عتاب صحافیوں سے ہونے والے ریاستی سلوک کا ذکر کیا تھا، مگر اس درخواست میں مطیع اللہ جان اور اسد طور کا ذکر نہیں تھا۔ ان دونوں صحافیوں کا درخواست میں نام نہ ہونے پر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کافی برہمی کا اظہار کیا تھا اور آبزرویشن دی تھی کہ مطیع اللہ جان اور اسد طور صحافی تصور نہیں کیے جاتے۔ یعنی چودھری اعتزاز احسن سے انہوں نے سوالیہ لہجے میں پوچھا کہ کیا یہ مطیع اللہ جان اور اسد طور جو ہیں یہ آپ کی نظر میں صحافی نہیں ہیں؟ یہ کیسی جماعت یا یہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی نہیں رکھتے ہیں؟ مطیع اللہ جان پی ٹی آئی کے دور میں اغوا ہوئے تھے اور اسد طور کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ قاضی صاحب نے یعنی یہ سوال کیا تھا، پوچھا تھا، اشارہ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں ان دونوں صحافیوں پر بھی ایک اغوا ہوا تھا اور دوسرے پر تشدد کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا چودھری اعتزاز احسن صاحب کو کہ آپ نے درخواست میں ان دونوں صحافیوں کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا آپ کی درخواست سے
सियासत छलक रही है। यानी इन दोनों का सहाफ़ियों का जिक्र ना करने पर आपकी एप्लीकेशन में सियासत नज़र आ रही है। तो नाजरीन, अब जो 2 जनवरी 2024 को जो 2 सहाफ़ी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के नज़दीक उस वक़्त आज़ाद सहाफ़ी थे, उनमें से एक आजकल चीफ जस्टिस साहब की ही गुस्ताखी के जुर्म में गिरफ्तार है, जबकि दूसरे को FIA की तरफ से हाज़िरी का नोटिस सर्व किया जा चुका है। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि जो 2 सहाफ़ियों के बारे में काजी साहब की खुद ऑब्जर्वेशन थी उस वक्त कि ये आपने इनका नाम उनमें किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता ना होने की वजह से आपने दरख्वास्त में शामिल नहीं किया, तो अब स्पेशली उन्हीं का जिक्र है कि वो 2 सहाफ़ी ही रियासत के ज़ेर इताब हैं हुकूमत के। तो यानी एक उनमें से असदतूर जो है वो उसको FIA गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि मतीउल्लाह जान को हाज़िरी का नोटिस दिया जा चुका है। नाज़रीन, मुबैना तौर पर इतला है कि बिजली की कीमत में 7 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट इजाफ़ा कर दिया गया है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिससे बिजली सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। PTI के MNA और मशहूर कानूनदान शेर अफजल मरवत ने अपने एक बयान में कहा है कि खान साहब पाक फ़ौज से इंतहाई मोहब्बत करते हैं। हमारी पाक फ़ौज से कोई लड़ाई नहीं है। यानी मैंने असल जमात उन्होंने बात की है कि हमारी PTI जमात की पाक फ़ौज के साथ कोई लड़ाई ना है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जो कप्तान मेजर्स कर्नल्स जनरल्स बॉर्डर पर कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं, उनकी बेवाएँ और यतीम बच्चे कौम की मोहब्बत के हकदार हैं। उनके साथ PTI मुहिब्बे वतन जमात वाला रवैया रखती है। नाजरीन, उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब ने 9 मई के बाद मज़ीद कहा है कि 9 मई के बाद हम पर मुख्तलिफ पार्टियों ने रियासत से बगावत करने और रियासत मुखालफ पार्टी जैसे इल्ज़ामात लगाकर PTI और पाक फ़ौज के दरमियान फासलों को बढ़ाने की कोशिश की है। शेर अफजल मरवत साहब ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि हम तो पाक फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जो हमारे पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के दरमियान फासले हैं, ये कुछ लोगों ने सोचे समझे मंसूबे के तहत गलत इल्ज़ामात हम पर लगाकर हमको गलत तौर पे मुलव्वस करके तो हमारे फासले बढ़ा रखे हैं। नाजरीन, मुबैना तौर पर इतला है कि पंजाब कमीना की वजारतों और कलमदानों का फैसला कर लिया गया है। इतला के मुताबिक परवेज़ रशीद साहब को मुशीर इतलात और नशरियात मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। और सेकंड नंबर पे मरीम औरंगज़ेब साहबा को वज़ीर दाखिला और बल्दियात मुकर्रर करने का फ़ैसला हुआ है। इसी तरह अज़मा बुखारी साहबा को वज़ीर खुराक व ज़राअत मुकर्रर किया जा रहा है। मुश्ताक अहमद सफेदा साहब को मुशीर कानून व इंसाफ
मुकर्रर किया जाएगा। मुज्तबा शुजाउर रहमान को वज़ीर तालीम मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है। इसी तरह नाज़रीन, ख्वाजा इमरान नज़ीर को वज़ीर बराए सेहत मुकर्रर करने का फ़ैसला हुआ है। और नंबर 7 पे सुहेल शौकत भट्ट साहब को वज़ीर बराए मवासलात और तमीरात का कलमदान दिया जाएगा। फैसल खोखर साहब को वज़ीर बराए खेल व अमूर नौजवानान मुकर्रर किया जाएगा। मलिक गज़नफ़र अब्बास चीना को वज़ीर बराए जेल खाना जात का कलमदान सौंपा जाएगा। शाफ़े हुसैन को वज़ीर बराए सनत व तजारत मुकर्रर किए जाने की इतलात हैं। शेर अली गोरचानी को वज़ीर बराए जंगलात मुकर्रर किया जाएगा। जनाब अहमद लगारी साहब को वज़ीर बराए लाइफ स्टॉक मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है। अयूब कादी साहब को वज़ीर बराए सोशल वेलफेयर और बैतुल माल मुकर्रर किया जाएगा। और नाज़रीन, 14वें नंबर पर बिलाल यासीन भट्ट साहब को वज़ीर बराए मेहनत व अफरादी क़ुव्वत मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर और हमारे वतन अजीज़ पर आसानियाँ पैदा करे। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने कीमती फीडबैक से भी आगाह करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फ़ौज जिंदाबाद।